Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 6, the verb. So let's start. Chapter number 6, the verb. Read the following sentences carefully. कुछ sentences पढ़ते हैं. First, the cold breeze is moving. Second, washerman washes our clothes. Third, parents are very lovely. Fourth, gardener waters the plants. Fifth, farmer ploughed his field. Sixth, the horse runs very fast. In the above sentences, the colored words are telling some action or state of the subjects. Hence, they are the verbs. ऊपर जो अभी हमने sentences पढ़े, उसमें जो colored words हैं, वो या तो कोई action बता रहे हैं या subject की state बता रहे हैं. तो ये जो colored words हैं, ये कहलाते हैं verbs. Thus, we can say a verb is a word which tells about the action of a noun or a pronoun or state of being. तो verb वो word होते हैं जो हमें किसी भी noun या pronoun का action बताते हैं या उनकी state of being. अब हम देखते हैं kinds of verb. Verb के kinds. The verbs are of three types. They are first transitive verb, second intransitive verb, third वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. तो वर्ब के तीन टाइप्स होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. द वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब्स. वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए, उन वर्ब्स को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. एग्जांपल्स देखते हैं. द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट. कैटल आर ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास. तो ये एग्जाम्पल्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के. सेकेंड, intransitive verbs. The verbs which do not need an object to make their sense are called the intransitive verbs. They make a good sense themselves. वो verbs जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए, वो खुद से ही एक अच्छी सेंस प्रोवाइड कर देते हैं. तो ऐसे verbs कहलाते हैं intransitive verbs. Birds fly in the sky. Rabbit runs fast. Third, verbs of incomplete predication. The verb which needs not an object to make complete sense is called verb of incomplete predication. We can complete them with the complements. वो verb जिनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. वो अपने कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू ही अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे द ट्रेन इज लेट. यू आर अ डॉक्टर. तो यहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए. ये अभी भी हमें एक प्रॉपर सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ वर्ब. कुछ और काइंड्स ऑफ वर्ब भी होते हैं. फर्स्ट, ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब. Second, auxiliary verbs and main verbs. Third, modal auxiliary verbs, non-finite and finite verbs. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ditransitive verbs. The verb which has two objects is called a ditransitive verb. वो verb जिसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कहलाती हैं ditransitive verb. Mother sent me a book. तो यहाँ पर me भी ऑब्जेक्ट है और a book भी. अनुज gave him a pen. यहाँ पर him और pen दोनों ऑब्जेक्ट हैं. सेकेंड, auxiliary verbs. The verbs which are used with main verbs to make sentences and passive forms etc. are called auxiliary verbs. वो verbs जो main verb के साथ यूज होती हैं सेंटेंस फ्रेम करने के लिए या पैसिव फॉर्म लिखने के लिए सेंटेंस की, वो verb कहलाती हैं auxiliary form. The boy is writing an essay. तो यहाँ पर जो is writing है, ये यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इज है और मेन वर्ब राइटिंग है. तो ये यहाँ पर इज राइटिंग मतलब मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों साथ में हैं. थर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. द वर्ब्स विच कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. वो वर्ब्स जो कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. कौन कौन सी होती हैं वो? मे, might, will, would, ought to, used to, can, could, shall, should. Fourth,
non-finite and finite verbs. The verb with ing form and verb form with to are called non-finite and finite verb. तो वो verb जिसमें ing लगा होता है या जो to के साथ लिखी होती हैं वो कहलाती हैं non-finite and finite verb. तो यहाँ पर देखते हैं non-finite verb, finite verb. यहाँ पर finite verb है walk, तो non-finite verb है walking. ऐसे ही finite verb help, तो non-finite verb में हम to help लिख सकते हैं. Now it's time to answer. A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे. First is the verbs are of dash type. Verb कितने types के होते हैं? 3 types के. Next, transitive verb requires and transitive verb को किसकी जरूरत होती है अपनी sense complete करने के लिए? Object की. B. Next, this verb completes its sense on its own. कौन सी verb अपनी sense खुद ही complete कर लेती है? Intransitive verb. Next exercise B. Underline the verbs and write their kinds. यहाँ पर आपको verbs को underline करना है और उनके kinds लिखने हैं. Now, B exercise underline the verbs and write their kinds. आपको verbs underline करनी है और उनके kinds बताने हैं. तो first is there is enough water to swim in it. तो यहाँ पर is verb है, तो यहाँ पर जो is है वो किस तरीके का verb कहलाएगा? ट्रांजिटिव verb, क्योंकि इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव verb. नेक्स्ट, द मार्केट ओपन्स एट 9 o'clock in the morning. तो यहाँ पर ओपन्स वर्ब होगा और ये भी यहाँ पर ये कैसा होगा? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर टाइम दिया है, तो यहाँ पर होगा ये इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट, माई मदर लुक्ड हैप्पी. यहाँ पर जो वर्ब होगा वो लुक्ड होगा और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट गिवन है हैप्पी, तो ये वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. नाउ सी एक्सरसाइज. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मॉडल्स गिवन बिलो. नीचे कुछ मॉडल्स गिवन है, आपको उनकी हेल्प से सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फर्स्ट सेंटेंस, अनु डैश स्पीक उर्दू बट शी डैश राइट इट. तो यहां पर आ जाएगा अनु कैन स्पीक उर्दू बट शी कांट राइट इट. वो बोल सकती है उर्दू पर वो लिख नहीं सकती. When my brother was 8, जब मेरा भाई 8 years का था, he could swim, तो वो swim कर सकता था. Next, it may rain today. इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ फिनिश हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको वर्ब और उसके काइंड समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. Thank you and have a nice day.